Assalamualaikum dear students. Today is our lecture number 10 in which we will discuss the topic of concept of greater than and less than for 4 and 5 digit numbers. Okay, and this topic is on your books page number 17 and 18. Okay, so dear students, can you see the crocodile at the opposite side of your heading? So this crocodile is very hungry, but he is very confused, and the reason of his confusion is as you know that crocodile like to eat the bigger number, but now he is confused that which one number will be bigger and which one will be smaller, because he like to eat the bigger number. So now we will help the crocodile in selection of the bigger number. So we will tell him the method that how we can select the bigger numbers. Okay, so you can see the two examples. In first example you can see the number 4693 and the picture of crocodile also, and on the other side of the picture of crocodile the number is 4698. So as you know that the crocodile like to eat the bigger number, so that is why he opens its mouth towards the 4698. But how 4698 will be the greater number? Because we will compare the units of one number with the units of other numbers. Okay, like 4 is 4000, 6 is 600, 9 is 9 tens, and 3 is 3 ones. Same the situation is with the second number. 4 is 4000, 6 is 600, 9 is 9 tens, and 8 is 8 ones. Okay, so 4000 is given us here also, and 4000 is given us here also. 6 is also same in both numbers, and 9 is also same. Now the difference is just in the ones. Here the ones is 8, and in this number the ones is 3. So 3 is less than 8, so we will select this number. Okay, because 8 is greater than 3, and you know dear students, crocodile like to eat the bigger numbers, so that is why we will select this number, and crocodile will eat 4698. Okay, 4698, because 4698 is greater than the 4693. Okay, so it was just for your understanding. When we compare these two, we will put the sign of less than and greater than. Okay, so I put the sign of less than because 4693 is less than 4698. Okay, now in the second example the crocodile opens his mouth towards the left side of the number. The left side of the number is 4698, and on the right side the number is 4693. So the crocodile will open its mouth towards the left side of the number, because 8 is greater than 3. It is the same example we discussed in the like the first. Okay, it is just like the example we discussed in our example number 1. Okay, just the positions of the number is changed. Okay, तो यहाँ पर positions change हैं just, so we will compare again the ones and ones. So 8 is now greater because it is on the left side of the crocodile. Okay, so crocodile will eat 4698 because 8 is greater than 3. 1 is greater in both the numbers, so we will select this number because 8 is greater than 3. Okay, and on the other side we will put the sign of greater because 4698 is now greater than the 4693. Okay, so we will put the sign of greater. Come towards the
some more examples. Now you can see, dear students, I have written some examples for you in different blocks. So in the first block we will compare ones, we will compare the two numbers, and the result is that ones is changed in thousand, hundred, tens and ones. In this example just ones is changed, so we will compare the ones, and which one number will be greater, we will select that number. Okay, and in the next block we will compare tens, and the last block we will compare thousand. Okay, so in this block we can see we have the number 5648 and the other number is 5640. So definitely 8 is greater number and 8 is greater than 0. So we will select 5648 and we'll put the sign of greater. Okay, greater का sign put करेंगे because we are comparing just ones in it, the other numbers are same in both numbers. Okay, now come towards the second block. In this block we will compare the numbers. Now 3900 is given in the other number also, just tens is changed because in the above number we have 0 tens and in the other number we have 5 tens. So we will compare tens. So 3906 means 3900 is less than 3956. Okay, so in the last block we have 10,000, 10,000, 10,000, 100, tens and ones. So in this block we will compare first of all 10,000. So when I compare 10,000, the 5 is greater than 8. So that is why we can say that 54,398 is less than 82,459. Okay, so here 10,000 will be compared. Okay, so 10,000 को compare करने के बाद we can see that the first one is less than and the second number is greater. So we will put the sign of less than, and here we will put the sign of less than, and here we will put the sign of greater than. Okay, so these were some examples. These were some examples given to you on page number 19. So now let's go towards your book work, and on book work we will discuss the some more examples, some more questions on page number 17, 18 and 19. So let's come towards the book work. Okay, and open your books, page number 17. Dear students, now first of all mention date on your page number 17 on countdown book. So on page 17 we have question number 3, fill in the boxes. ठीक है, बॉक्सेस में आपको बॉक्सेस गिवन है आपके पास पेज नंबर 17 पे क्वेश्चन नंबर 3 है. सो हमने इन बॉक्सेस को फिल करना है, और यहाँ पर जो कुछ हमने फिल करना है माय डियर स्टूडेंट्स वो मैं आपको सेवरल टाइम जो है वो अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ. सो आई थिंक कि अभी आपको फिल करने में या इन बॉक्सेस को देखने में कोई इशू नहीं होगा, इनको फिलअप करने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर मैं आपको एक बार पेज पर बनाकर बता चुकी हूँ. टेंस, वंस, 1000, 100,000, 10,000 का स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट डिजिट ये मैंने आपको एक दफ़ा पेज पर बताया था, और एक दफ़ा मैंने आपको काफ़ी ब्रीफली जो है वो वाइट बोर्ड पर भी समझाया था. ठीक है, तो आई होप इट विल बी नाउ ईजी फॉर यू. चलें, तो अब हम इसको फिलअप करते हैं. Yes, so the first box is already solved, and the first blank is the greatest one digit number is ones. In ones हमारे पास जो greatest वन डिजिट नंबर जो होता था वो क्या होता था, 9 होता था. जब हम लोगों ने वंस को स्टडी किया था हमने ये कहा था कि जो इंडिविजुअल नंबर्स हमारे पास होते हैं वो हमारे पास फ्रॉम 1 to 9, जो 0 to 9 हमारे पास वंस के जितने भी सिंगल डिजिट थे जो हमने वाइट बोर्ड पर भी डिस्कस किए थे, वाइट बोर्ड पर भी डिस्कस किए थे, वो तमाम हमारे पास जो थे वो सिंगल डिजिट नंबर फ्रॉम 0 to 9 हमने जब डिस्कस किया तो हमने कहा ये तमाम के तमाम हमारे पास वंस हैं, जिसमें 9 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर था इन वन डिजिट नंबर्स.
तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास जो 1 डिजिट नंबर्स में था वो 9 था, क्योंकि देखिए आप खुद सोचें, क्या 0 हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं? नहीं, 9 इसलिए होगा क्योंकि 9 ही आपके पास बिगेस्ट है। बिगेस्ट 9 सिंगल डिजिट नंबर की बात हो रही है। ओके, 1 डिजिट नंबर में जो बिगेस्ट नंबर हमारे पास है वो 9 है। आप खुद सोचो, क्या 9 से बड़ा कोई सिंगल डिजिट है आपके पास? सिंगल डिजिट मतलब 1 डिजिट नंबर्स में 9 से बड़ा कोई नंबर है आपके पास? नहीं, तो इसीलिए 9 हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके बाद हमारे पास है इट्स सक्सेसर इज डैश। अब मैं इन माय प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ब्रीफली सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में बताया था, डेट व्हाट आर सक्सेसर्स एंड व्हाट आर प्रीडिसेसर्स। तो प्रीडिसेसर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो नंबर जो पहले आता है उसको प्रीडिसेसर बोलते हैं, और जो नंबर हमारे पास बाद में आता है वो हमारे पास सक्सेसर होता है। अब ये किस तरह से, मतलब आपको इस बात की अभी नहीं समझ आ रही होगी, ये आप इन द सेंस ऑफ ग्रेटर और स्मॉलर भी लेते हो, यही भी मैंने आपको बताया था। लाइक अब यहाँ पर मेरे पास 9 है और यहाँ पर अब इन्होंने मुझसे इस 9 का सक्सेसर मांगा है, मतलब इस 9 का मुझे नेक्स्ट नंबर या जो बड़ा नंबर है वो बताना है जो इस 9 के बाद आएगा। तो वो हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा? इट विल बी 10, ठीक है, वो हमारे पास 10 होगा, क्योंकि देखिए 9 के बाद मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हम एक और डिजिट 9 में ऐड करें 1 को, अगर हम 1 को 9 में ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास वो इक्वल टू 10 होगा। तो 9 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आता है वो 10 आता है, और 10 इज़ आर 2 डिजिट नंबर। 9 इज़ 1 डिजिट नंबर, 2 हमारे पास 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। आप माइंड में थोड़े अपना रिवीजन में आपको करवा रही हूँ, ये सारे प्रीवियस टॉपिक थे, अगर आपने अच्छे से उनको प्रीवियस टॉपिक को स्टडी किया है, उनकी रिवीजन की है, सो इट विल नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको 9 1 डिजिट नंबर में ग्रेटेस्ट दिया गया है, इसका आपका से सक्सेसर मांगा गया है। सक्सेसर शुड बी द 10, सक्सेसर हमारे पास 10 होना चाहिए। 10 हमारे पास क्यों होना चाहिए? क्योंकि 9 के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो हमारे पास 10 होता है, ठीक है। तो और 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, ओके, 1 और 0 है, तो 10 हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। 9 हमारे पास 1 डिजिट नंबर है। सो आई विल राइट 10 इन दिस बॉक्स बिकॉज 10 इज सक्सेसर ऑफ 9। 9 का सक्सेसर 10 है, ठीक है। 9 हमारे पास इस टाइम अगर हम 9 और 10 को कंपेयर करें तो 9 हमारे पास प्रीडिसेसर है, जबकि 10 हमारे पास क्या होगा? सक्सेसर होगा, क्योंकि 9 के बाद हमारे पास 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और वो 10 होगा, ठीक है। हमारे पास 9 का सक्सेसर 10 होगा। सो प्लीज़ राइट 10 इन दिस बॉक्स। ओके, अब 10 मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि 10 जो है वो 9 का सक्सेसर है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब 10 आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है ना। 10 आपके पास इसलिए स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है क्योंकि 10 ही से आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 10 ही आपके पास फर्स्ट डिजिट है जो कि स्मॉलेस्ट डिजिट है, क्योंकि 10 पे आपका एंड नहीं होते 2 डिजिट नंबर, 10 से आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली 10 विल बी स्मॉलर 2 डिजिट नंबर होगा ना। 10 आपके पास स्मॉलर 2 डिजिट नंबर होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 10 आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ओके। अब आपके पास है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। अब यहाँ पर अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 10 आपके पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, सो व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आपके पास कौन सा होगा? सो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विल बी 99। बताया था ना मैंने आपको कि आपके पास जो 2 डिजिट नंबर एंड होता है, तो जो लास्ट डिजिट आपके पास आता है 2 डिजिट नंबर का वो होता है 99। सो यहाँ हम 99 लिखेंगे जी। तो 99 मैंने यहाँ पर देखिए लिख लिया है, 99 में यहाँ लिख चुकी हूँ बॉक्स में। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर था वो 10 था हमारे पास। अब आते हैं हम 99 के सक्सेसर का पूछा जा रहा है, दैट इट्स सक्सेसर इज़। अब 99 का सक्सेसर क्या होगा? 99 का सक्सेसर डेफिनेटली हमारे पास 99 के बाद आने वाला नंबर कौन सा होगा? 100 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 99 का सक्सेसर। सो 99 का सक्सेसर हमारे पास होगा 100। सो राइट 100 इन दिस बॉक्स। Now they are asking about the
विच इज़ द डैश 3 डिजिट नंबर। अब आपने ये बताना है कि ये आपके पास ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जी। तो 3 डिजिट नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 100 से, तो जब वो स्टार्ट 100 से होते हैं तो डेफिनेटली 3 डिजिट नंबर 100 हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा। सो राइट स्मॉलेस्ट इन दिस बॉक्स जी। तो ये आपके पास होगा, यहाँ पर आएगा स्मॉलेस्ट। बहुत ज़्यादा ये आपके पास ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट भी बताने होते हैं और आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी खुद ब खुद पता चल जाते हैं। अब ये आपके पास प्रीडिसेसर है और ये सक्सेसर है, और ये आपके पास 99 है, ये प्रीडिसेसर है और 100 सक्सेसर है। अब आपके पास दूसरा देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे पास द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ डैश। अब आपके पास ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो हैं वो कौन से हैं, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास वो होगा जहाँ 3 डिजिट नंबर हमारे पास एंड अप हो जाते हैं। तो एंड अप हमारे पास 3 डिजिट नंबर कहाँ होंगे, 999 के बाद हमारे पास 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 999 जी। तो आपके पास अब ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो है 999 और ये आपके पास जो है वो आप कह सकते हो यहाँ पर कि 100 आपके पास अब प्रीडिसेसर हो गया है और सक्सेसर आपके पास 999 आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। अब दे आर आस्किंग अबाउट द सक्सेसर ऑफ 999। तो सक्सेसर 999 का हमारे पास जो है वो होगा 1000 और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 1000 जो है वो स्टार्ट ऑफ 4 डिजिट नंबर है। 999 के बाद हमारे पास 1000 आता है। 1000 सक्सेसर ऑफ 999 है और 999 अब आपके पास प्रीडिसेसर हो गया है, तो यहाँ पर हम 1000 लिखेंगे और ये 1000 क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं अब 4 डिजिट नंबर, तो ये 4 डिजिट नंबर जो 1000 का होगा ये अब आपके पास स्मॉलेस्ट होगा 4 डिजिट नंबर। ठीक है, so dear students, we have completed all the boxes of question number 3 and this question is very important at the point of view of your papers। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और it was very interesting question really। I feel very happy with when I was doing this question for you, because in this question you have given the concept of predecessor and successor also, and you have given the concept of ग्रेटर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट 2 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो ये एंड आल्सो द 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट नहीं दिया, जबकि अब आपके पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या कौन सा होगा 9999 और उसके बाद हमारे पास 5 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो 10,000 है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई फील रियली वेरी हैप्पी। ओके, सो आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन करते हुए बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 17 पे आपके पास है आइडेंटिफाई द सर्कल नंबर एज प्रीडिसेसर और सक्सेसर देन पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। अब करेक्ट बॉक्स में आपने टिक करना है। ठीक है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर आपको ऊपर लिखे गए हैं। अब आपके पास वही जो ग्रेटर और फर्स्ट आने वाला जो ग्रेटर और बाद में आने वाला नंबर होगा वो सक्सेसर होगा, और जो बड़ा नंबर होगा छोटा नंबर होगा और पहले आया होगा, यानी छोटा तो हमेशा देखिए फर्स्ट ही होता है ना हमारे पास, और बाद में आने वाला नंबर हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है, तो अब आपने करेक्ट बॉक्सेस में टिक करने हैं। जो सर्कल डिजिट हैं नंबर्स हैं ये उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑलरेडी सॉल्व है आपके पास। जो सेकंड है आपके पास वो है 3110 एंड 3109। तो अब यहाँ पर इन्होंने आपको सर्कल करके दिया हुआ है 3109। तो अब आपने देखना है कि ये सक्सेसर में आता है या प्रीडिसेसर में आता है जी। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है, ये जो सर्कल्ड हुआ है ये हमारे पास 3110 से स्मॉलेस्ट है। तो डैट इज़ वाई वी विल टिक इन द बॉक्स ऑफ प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर में आपने टिक करना है जी। तो इस तरह से आपने प्रीडिसेसर में टिक करना है। अब बाकी का आपका होमवर्क है और मैं आपको अब पार्ट नंबर ई करवाऊँगी। ठीक है, इन पार्ट नंबर ई वी हैव
the number 8119 and we have the number 8120. When we compare these two numbers, so we will compare first of all the thousands. तो thousands जब हम compare करेंगे तो यहाँ भी आपके पास 8000 है और यहाँ भी आपके पास 8000 है. जब हम लोग 100 को compare करते हैं तो यहाँ भी आपके पास 100 है और यहाँ भी 100 है. जब हम लोग टेंस को compare करते हैं तो टेंस में यहाँ आपको 1 गिवन है और यहाँ आपको 2 गिवन है. तो डेफिनेटली ये हमारे पास स्मॉलेस्ट आ गया और ये हमारे पास बिगर नंबर है और ये हमारे पास स्मॉलेस्ट है. तो डेफिनेटली वी विल पुट आवर टिक इन द बॉक्स ऑफ प्रीडिसेसर में टिक करें. जी, तो मैंने टिक का साइन लगा दिया यहाँ पर आपके लिए प्रीडिसेसर में. ठीक है, ओके. अब मैं आपको पार्ट नंबर मैं आपको बताऊंगी आई. पार्ट नंबर आई हमारे पास 5 डिजिट नंबर है. यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगी 1 बाय 1 तमाम यूनिट्स को दूसरे नंबर की यूनिट्स के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 12,000, तो यहाँ पर भी 12,000 है. फिर हमारे पास है 400, यहाँ भी 400 है. फिर हमारे पास है 558, फिर यहाँ पर हमारे पास 57 है. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने जब वंस को कंपेयर किया तो यहाँ पर हमारे पास 7 वंस गिवन है जबकि यहाँ 8 गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर अब डेफिनेटली जो सर्कल नंबर है वो हमारे पास ये है. ये सर्कल नंबर जो हमारे पास है ये हमारे पास इससे देखिए ग्रेटर आ रहा है. तो ये जब इससे ग्रेटर है तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका सक्सेसर हुआ. ठीक है, तो अब हम कहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे, हम सक्सेसर में लगाएंगे क्योंकि 57 जो है वो छोटा है, 58 हमारे पास बड़ा है और इसी वजह से ये 58 सक्सेसर ऑफ 57 है. ठीक है, तो हम टिक का निशान लगाएंगे यहाँ पर सक्सेसर में. ठीक है जी, तो इसके अलावा जितने पार्ट्स आपके यहाँ पर मैंने नहीं करवाए वो तमाम पार्ट्स आपके होमवर्क में आएंगे. ठीक है, चलें अब चल के पेज नंबर 18 पर जाते हैं कि वहाँ पे हमें क्या गिवन है. जी, तो पेज नंबर 18 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जिसमें हमने क्रोकोडाइल को जो है वो 2 नंबर्स को कंपेयर किया था और क्रोकोडाइल को हमने शो किया था. तो ये वही पेज है आपके पास. इसी पेज की एग्जांपल्स मैंने आपको उस पेज पर बताई. ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आज की डेट मेंशन करें और ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इस तरह से आपने तमाम पार्ट सी से एच तक खुद करने हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, इनमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है वो भी आपके पास गिवन है, साइन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन जस्ट आपने पुट करने हैं. काफ़ी ब्रीफली मैं आपको पेज नंबर 17 पर ये बात समझा चुकी हूँ. ठीक है, कि आपने किस नंबर को किस तरह से कंपेयर करके उनके यूनिट्स को और फिर उसमें लेस और ग्रेटर देन पता करने हैं, आपको मालूम हो जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी इज़ वेरी ईजी क्योंकि जस्ट यू विल पुट the sign of less than and greater than in question number 2. लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 में है यूजिंग द डिजिट्स 3046 राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. क्वेश्चन नंबर 4 में है यूजिंग द डिजिट्स 2168 राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो 4 डिजिट्स आपको गिवन है इससे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इन्हीं डिजिट्स को लेके. तो ये भी बहुत ईजी है. आपके पास जो नंबर्स गिवन है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हम पहले लिखेंगे. इसको हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं. डिसेंडिंग में जिस तरह हम फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाते हैं इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेटर 4 डिजिट्स नंबर लिखने हैं. और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हमने बिल्कुल ऐसे करना है जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ. तो ये डिजिट्स हम इस तरह से लिखेंगे. ये मैं आपको खुद बॉक्स में लिख के बताती हूँ. तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास बॉक्सेस गिवन है. इन बॉक्सेस में हमने ये नंबर लिखने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रेटेस्ट नंबर इन 4 डिजिट नंबर्स में है वो 4 नंबर्स में है वो हमारे पास है 6. तो हम यहाँ लिखेंगे 6. उसके बाद जो नंबर हमें 6 से हमारे पास जो छोटा है लेकिन इन बाकी के 3 नंबर्स में बड़ा है वो हमारे पास है 4. तो हम यहाँ लिखेंगे 4. उसके बाद जो हमारे पास नंबर गिवन है इन 2 नंबर्स जो हमारे पास रह गए हैं 2 नंबर्स लेफ्ट, तो उसमें हमारे पास 0 और 3 है. तो 3 हमारे पास 0 से बड़ा है. सो वी विल राइट 3.
उसके बाद हम लिखेंगे 0 क्योंकि 0 सबसे छोटा है यहाँ पर, तो 0। अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर बन गया ना, देखें 6430, यानी हमारे पास इन 4 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर 6 था, फिर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 4 था, फिर सबसे बड़ा नंबर 3 था और फिर सबसे बड़ा नंबर 0 था जो कि सबसे छोटा था यहाँ पर। तो हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा और हमारे पास अब 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ये बनकर आ गए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हैं। 6430। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपने लिखना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यही 4 डिजिट नंबर आपको नीचे नहीं गिवन, ये 4 डिजिट्स नहीं गिवन, आपको अलग 4 डिजिट नंबर गिवन है। तो यही 4 डिजिट नंबर जो नीचे आपको अब गिवन है वो हैं 2168। अब इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है ताकि आपके पास स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बने। ठीक है, तो वो आपको 1000 से ही पता चलेगा ना। ठीक है, तो 1000 में हम यहाँ पर अब लिखेंगे 2 को। तो अब हमने 2 लिखा। अब 2 के बाद जो हमारे पास छोटा नंबर आ रहा है यहाँ पर वो कौन सा आ रहा है? 2 के बाद हमारे पास छोटा नंबर यहाँ पर आ रहा है जी। तो मैंने आपसे कहा कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो यहाँ हमने सबसे छोटा नंबर देखना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम 1 लिखेंगे सबसे पहले। अब 1 से जो छोटा नंबर हमें यहाँ पर गिवन है, जो बाकी के 3 नंबर्स में छोटा है, मतलब 268, उसमें जो सबसे छोटा है वो 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो 2 से बड़ा आएगा और हमारे पास बाकी 2 नंबर्स में छोटा होगा वो 6 लिखेंगे हम। और उसके बाद हम लोग 8 लिखेंगे क्योंकि वो लास्ट में रह जाने वाला सबसे बड़ा नंबर है। तो ये देखिए ऊपर वाले नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखे गए हैं, इसलिए वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बने हैं। और जो नीचे वाले 4 नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ गए हैं, तो इस वजह से वो स्मॉलेस्ट हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। सही है, तो यहीं पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर आप बस देखें कि हमने 1000, 100, 1s, 10s और 1s को हमने लिखा, 6430 लिखा और यहाँ 1268 लिखा। तो इस तरह ऑर्डर में आपने इन क्वेश्चंस के नंबर्स को अरेंज करना है कि अगर आपने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर लिखने हैं तो उसमें आपने जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने हैं तो फिर आपने उन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना है जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये असेंडिंग में अरेंज है, ये डिसेंडिंग में अरेंज है। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, और ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हुआ। यहीं पे हम अपना आज का लेक्चर एंड अप करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने तमाम क्वेश्चंस जो होमवर्क में मैंने आपको दिए हैं उनको काफ़ी अच्छे से नीटली अपने बुक्स पर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब पेज नंबर आपके पास 19 है। 19 पेज नंबर में मैं आपको पार्ट बी करके बताती हूँ। पार्ट ए आपके पास ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो पार्ट बी में आपने कंपेयर करना है एक नंबर के यूनिट्स को दूसरे नंबर के यूनिट्स के साथ। तो यहाँ पर अब जब हम यूनिट्स को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट बी में 3906 गिवन है और 3956 यहाँ गिवन है। तो डिफरेंस बहुत क्लियर है, आपको देखिए यहाँ 0 टेंस में गिवन है और यहाँ 5 आपको टेंस में गिवन है। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 कि आपने ग्रेटर और लेस बॉक्स में लगाने हैं और आप जिन यूनिट्स को आपस में कंपेयर करते हो उनका नाम आपने यहाँ इस ब्लैंक में लिखना है। मैंने तो बॉक्स बनाया लेकिन आपने ब्लैंक में लिखना है। तो यहाँ हम लोगों ने जब कंपेयर किया टेंस को, तो यहाँ पर टेंस में हमारे पास आया है 0 और यहाँ पर हमारे पास है 5। तो डेफिनेटली 3906 विल बी लेस देन 3956। तो यहाँ हम लेस देन का साइन पुट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे टेंस, क्योंकि टेंस को कंपेयर करने से हमें पता चला कि ये स्मॉल है और ये ग्रेटर नंबर है। ठीक है।